आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के विशेष मौके पर आज ग्रीनफील्ड स्थित वार्ड नंबर 22 के जो पूर्व पार्षद हैं कैलाश बैंसला, उनके कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर जो है मुख्य अतिथि मेयर सुमन बाला, जो पूर्व मेयर हैं निवर्तमान, वह मौजूद रहीं। और आज जो है यह कार्यक्रम महिलाओं पर समर्पित रहा। महिलाओं से ही यहाँ पर कन्याओं से ध्वजारोहण किया गया और विशेष तौर पर महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। मेरी छोटी बहन सुमन वाला, फरीदाबाद मेयर, यहाँ की काउंसलर मेरी बेटी हेमा चौधरी, मंच पर बैठे मेरे पिता समान पाभा जी, मेरी माताएं बहनें। आज का दिन कोई राजनीतिक मंच का दिन नहीं होता, ना ही कोई लंबा चौड़ा भाषण देना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। इस आजादी के लिए किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। बहुत कुर्बानियों के बाद इस आजादी का गौरव हमें हासिल हुआ है। आज का दिन जो हमने रखा है, बेटी का सम्मान और झंडे की आन। Everybody present here. Today, I, Arika Agarwal, proud student of MRIS Stanford, am going to present my thoughts on a very sensitive issue of the society. Problems faced by a girl child in society. Gender-based preferences is the main challenge which impacts the growth of a girl child in society. The challenges is immense. No doubt, women have showcased significant gains, but we can find that still gender equality is elusive. Here's a short story of a young girl who wants to go to the college for her further education. सोच रही थी कि +2 के बाद मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई करूं। वो सब तो ठीक है, पहले घर के काम काज तो सीख ले, आखिर शादी करके पराए घर भी तो जाना है। मॉम, आप पहले ही उस घर को पराया कह रही हो, तो जाना ही क्यों? I think I should focus on my studies rather. पापा को पता है? बुला लो। जाओ। पापा नहीं, हमारे चाचू हैं। चाचू है? चाचू को बुला लो। पता है? नहीं पता? आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी खड़े रहो। आपका नाम क्या है? समायरा। आप किस स्कूल में समायरा? आयशर। किस क्लास में? सेकेंड। क्या बोलेंगे आप? तारा रानी। ठीक है, लो बात करो। Tara Rani was an Indian freedom fighter. She born to a simple family in Bihar. She joined Quick Indian Movement in 1942 with her husband. Tara Rani encouraged many women to join freedom struggle against British Raj. They began marching towards police station shouting "Inqilab," but police opened fire and her husband hurt. But Tara Rani कंटिन्यू हर कि बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आप लोगों ने हम लड़कियों का हाथे से झंडा फहराया। मैं अपनी खुशी के शब्दों में बताऊँ। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले। Studying in MPN. It's been so long that India has become a free country, and here we all are today celebrating the 75th year of Independence Day. But unfortunately, there are places where girls are still struggling hard to attain freedom. I'm here to grab your attention towards the problems faced by a girl child. Over years, gender discrimination has reduced to some extent. But the question is that, are we successful in eradicating it from roots? The answer is no. Gender
हर लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है. But I think it's a high time to change this mentality. Because हर लड़की एक इंसान है and she deserves to live and she deserves to fly. Jai Hind, happy Independence Day. Thank you. Ma'am, and all the respected persons present here. Today, Anita Sinha, a resident of Greenfield Colony and a student of Dynasty International School studying in grade 11, is here to deliver a speech on Save Girl Child. Today, we are celebrating India's 75th Independence Day. What do Gunjan Saxena and more should be honored as they are doing their best in their careers and making our country proud. They are removing the norms which are followed by our society. In the last, I would like to conclude my speech by saying that the women are the most wonderful creatures the God has ever seen in this world. अमृत महोत्सव के तहत 75वीं वर्षगांठ पूर्ण हुआ है और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है कैलाश बैसला जी के ऑफिस में. थीम जो है महिला थीम रखी गई थी, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए. क्या कहेंगे और ऐसा क्यों हुआ? हर बार का प्रोग्राम मेरे एक थीम होता है, मेरे हर प्रोग्राम का थीम होता है. 26 जनवरी और 15 अगस्त का थीम होता है. इस बार का थीम मैंने डिसाइड किया था, डॉटर ऑफ इंडिया, भारत की बेटियाँ. आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के किस तरह से लड़कियाँ, इनको कोखे मारा जा रहा है, वो देश के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज छोड़िए गोल्ड लेके आ रही हैं. फिर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए मुझे था कि वो बच्चियाँ स्पीच में आपने देखा कि कितना अच्छा उन्होंने स्पीच बोला जो उनके मन में था. क्योंकि अभी वो बच्चियाँ हैं, कल को वो लड़कियाँ बनेंगी, लड़कियाँ से औरतें बनेंगी, फिर माँ बनेंगी, फिर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाएंगी. औरतों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अभी भी भारतीय समाज न सुनने को तैयार है, न समझने को तैयार है. इसके लिए हमने ये थीम रखा था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा. जी, बच्चियों को सम्मानित भी किया गया है. बच्चियों ने अच्छी जो है एक पोएट और एक समाज को अच्छा संदेश दिया है. क्या कहेंगे और कितना ज़रूरी है आज के टाइम में नारी शक्ति को बढ़ावा देना? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, देवी लक्ष्मी जो धन की देवी हैं वो आपकी महिला हैं, जो सरस्वती हैं विद्या देती हैं वो भी महिला है, शक्ति जो है प्रतीक वो भी महिला है. लेकिन हमारे ही समाज में महिलाओं का असम्मान क्यों, मुझे समझ में नहीं आता. जय माता दी के हम नारे लगाते हैं, ललकारे लगाते हैं और देवी की पूजा करते हैं. और यहीं पे ऐसा क्यों? इस देश को हम बहुत, हिंदू समाज एक बहुत वाइड समाज है. जितना समाज हिंदुओं में ना औरतों को दिया गया उतना तो किसी भी कल्चर और किसी भी कास्ट में नहीं है. तो मैं ओपनली कहती हूँ हर देवियों को पूजा जाता है यहाँ पे और सारे मन से पूछते हैं. लेकिन अभी भी चीज़ें हैं जो समझने को लोग तैयार नहीं हैं. और एक बेटी का पढ़ना, इस बात को आप ज़रूर नोट करें. अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं. बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटल सर्जन हूँ. मैंने आज तक अपने हस्बैंड से 1 रुपया नहीं लिया. मैंने अपने फादर से 1 रुपया नहीं लिया. आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीट माई बीडीएस, एंड मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही हूँ और प्राउडली पढ़ा रही हूँ. और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए है कि मैं अपना कमाती हूँ, मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, इसीलिए मेरे में आत्मविश्वास है. तो अगर मैं पढ़ी हूँ तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ. अगर मेरी एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं होती तो नहीं पढ़ा पाती. और आर्थिक रूप से अगर मैं स्वतंत्र नहीं होती तो मैं आपके सामने इस तरह से नहीं बैठी होती. आज नारी शक्ति से ही ध्वजारोहण करवाया गया है. कितना सार्थक है ये संदेश समाज? ये संदेश मुझे इसलिए देना था कि मैंने कहा था कि फ्लैग होस्टिंग हमारी बेटियां करेंगी. उससे क्या फ़र्क होता है कि कहीं ना कहीं फीमेल चाइल्ड को लगता है कि वी आर इम्पॉर्टेंट. जब आपको मैं आदर और सम्मान देती हूँ तो आपको लगेगा कि मुझे सम्मान मिला तो मैं महत्वपूर्ण हूँ. तो बच्चियों को ये एहसास कराने के लिए कि वो महत्वपूर्ण है, इसी वजह से मैंने फ्लैग होस्टिंग भी बच्चियों से, अपनी बेटियों से कराया और सारा काम उन्होंने किया. आज उन्होंने स्पीच भी उन्होंने दी. आज बॉयज़ सिर्फ आए थे, अटेंड किया फंक्शन, लेकिन ये फीमेल को ही समर्पित था ये प्रोग्राम.